اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آئین کے دائرے میں رہ کر ان کو آئین جس ڈومین کی اجازت دیتا ہے اس میں رہ کر وہ اپنے کام پر توجہ دیں، تو انشاءاللہ پاکستان میں جو ہے بہتری آئے گی۔ وہ پوچھ کر بتاتے ہیں نا، اگر ڈائریکٹ یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں کہ میرا لیڈر ابھی بھی جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، اس کو جو ہے اپنی بہنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اپنے جو اس کے سیاسی دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی اہلیہ کو جو ہے ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، ان کی بہنوں پر وہاں پر زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے جو ہے وزیر اعلیٰ کو جو واحد عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا ہے اس کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں، وہاں وہ آتا ہے اس کے لیے لائٹس بند کر دیے جاتے ہیں، مارکیٹس بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو آمروں کی گود سے جنتے ہیں وہ جمہوری اقدار کو پسند نہیں کرتے، اور یہ رویہ جو ہے ان کا ابھی سے نہیں پہلے سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے سائن کیا ہوا تھا، جسے یہ مساقی جمہوریت کا نام دیتے تھے، تو یہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کنڈلیزا رائس کی جو نو ہائر آنر، اس میں انہوں نے تمام قصہ سنایا تھا کہ بیک ڈور پر ان کے پھر بھی رابطے تھے، تو یہ اعتماد کے قابل ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بات میرے خیال میں بہت زیادہ۔ میں آپ کو تجویز دوں گا، نہ کوئی ہدایت دوں گا، میں سب یہ کہوں گا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سر سے لگے کہاں ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے، مسلم لیگ نون پارٹی کے بھی تحریک انصاف ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سولوشن کوئی 1 2 3 4 آپ کی طرف سے اس طرح عمران خان کی رائے کو آپ کا بیسک مطالبہ ہے کہ کوئی راہ دیا جائے، اس سے آگے نکل کے بھی کوئی راستہ ایسا آپ دیں گے لوگوں کو یا ایک پیغام دیں گے کہ اس کے ذریعے اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے تاکہ قرآن سے نکلے کسی لڑائی جیتا۔ دیکھیے جب ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ گیو پیس اے چانس اور وہ ڈائلاگس کے ذریعے ہی، تو ہم پاکستان کے اندر بھی جو ہے ڈائلاگس کی مخالفت نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیڈر نے جو ہے مجھے ذمہ داری دی ہے اسٹریٹ موومنٹس کی، کہ اس کی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں کروں۔ ڈائلاگس اور مزاحمت کی جو اختیار ہے وہ علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود چکزئی صاحب ان کو دیا ہے۔ میرے لیڈر کی طرف سے مجھے اگر جب بھی یہ اختیار دیا گیا تو انشاءاللہ میں پھر کوشش ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 5 نومبر 2024 کو اسٹیبلشمنٹ آف انڈیا کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے اور اس دوران فیصلہ کیا گیا کہ 22 نومبر 2024 کو عمران خان صاحب رہا ہو گئے، لیکن آپ کے فارورڈ سے فیصلہ کیا کہ 26 نومبر 2024 کو 10 لاکھ لوگ نکل آئیں گے اور وہ اسٹیبلشمنٹ پر آگے بڑھ گئے، تو آپ عمران صاحب سے بات کریں گے پانی کی سطح ایک دعوے کی سطح۔ دیکھیے یہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چاہے مہویاں ہیں لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ٹھوس بات ہمارے سامنے نہیں تھی نومبر کے مہینے۔ لہٰذا یہ جو ایک پوری کہانی بنائی گئی ہے، یہ پہلے بھی بنائی گئی تھی 2023 کے حوالے سے، اس وقت بھی کچھ ہونے لگا تھا، لیکن کوئی ٹھوس بات کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کی ایک دہشت گرد جماعت ہے، وہ دشمن جماعت ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ کی بات مانتے ہیں؟ دہشت گردی کرتا ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے، اور دہشت گردی کا اور دہشت گردی کو جو بھی سپورٹ کرتا ہے وہ خود دہشت گرد ہوتا ہے۔ تو یہ بات ویسی جو ہے ایک سیاسی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے جو چھپے مقاصد ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے۔ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، تو اس کی ثبوتیں دینی چاہیے جو ریاست ہیں اس کو۔ میں تو صوبہ ہوں، وفاق میں میری گورنمنٹ نہیں ہے کہ میں اس پر جو ہے مدلل بات کر سکوں کہ مطلب یہ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ثبوت ہے۔ جب میں نے یہ بات کی، وہ ISPR صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں نیچے میں 3 صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں، اس نے خود پالش شروع کی تھی اور اتنا زیادہ ان کی تعریفیں کی، اور بدقسمتی سے 4.5 کروڑ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف اس نے جو ہے پریس کانفرنس میں ویڈیوز چلائی۔ تو وہی میں بات کر رہا تھا کہ باقی ملک بھی جو ہیں وہ افغانستان کے باؤنڈری پر ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ شکایات نہیں ہو رہی کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمارا پلی یہ ہے کہ جب ہم چیخ رہے تھے کہ ان لوگوں کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، ان کو آباد نہ کرے، پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کو نہ لائیں، اور اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے،
اور دیکھو پہاڑوں پر آ گئے اور پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں. ہم نے یہاں تک ان کو بتایا. सीधी साहब कब की बात कर रहे हैं आप? ये बात तो एक तरफ ये 21 साल की बात कर रहे हैं. ये मुराद सईद की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं. ये 2022 में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद इनकी डील हुई और इनको जो है दोबारा बात करने के लिए बाकायदा इनकी मीटिंग हुई और वो जो है सबके सामने है. और ये मैं जो है 9 अप्रैल 2022 की बातें कर रहा हूँ. हमारी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं. इन्होंने हमें कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. राना सनाउल्लाह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है, उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. लेकिन आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ करने जा रहे हैं. तो या तो ये उस वक्त जुटे थे या अब जुटे हैं, लेकिन अभी तो ये मान रहे कि हैं. तो इसका मतलब ये उस वक्त जुटे थे और ये डील कर चुके थे इनको दोबारा बात करने के लिए. हमारा दूसरा जो इनसे सवाल है कि आप लोगों ने फेंसिंग लगाई, कौम का इतना पैसा बाढ़ पर लगाया. आप लोग उस वक्त ये क्लेम कर रहे थे कि जब हम बाढ़ लगाएंगे तो कोई परिंदा भी पाकिस्तान में पर नहीं मार सकेगा. तो ये दोबारा फिर किस तरह है? ये हमारे सवालात हैं. अगर हम इनकी पुष्टपनाही करते या इनकी सपोर्ट करते तो हम ये क्वेश्चन क्यों करते कि ये दोबारा आ रहे हैं, इनको रोको. नहीं पीडीएम की गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट. हाँ यार, फेंसिंग तो उनके ज़माने में लगी. मैं उनको दोबारा बात करने की बात कर रहा हूँ कि जब दोबारा लाए गए ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आए. वो जो बहुत शॉर्ट टाइम था जिसको आप बात करें कि ठीक है अप्रैल के बाद हुआ होगा, लेकिन ये प्रोसेस, ये बातचीत का तरीका कि उनको लाके बात करना है, ये तो आपके दौर में शुरू हो गया था. हमारे दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं, बाजवा साहब के चलता. मेरी बात सुनिए. नहीं मैं आपको साबित करता हूँ ना, मैं आपको साबित करता हूँ. बाजवा साहब की ख्वाहिश थी कि इनको दोबारा बात किया जाए. हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट किया था और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है. मीटिंग के मिनट्स आप देखें, उसमें हमारे कैबिनेट नूरुल्लाह कादरी साहब भी उठे थे, मुराद सईद साहब भी उठे थे. उन्होंने रिजेक्ट किया था. और वहाँ के जो उस वक्त के कैबिनेट मेंबर्स हैं, आप उससे पूछें. जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी उसके कैबिनेट ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने नहीं दी. ये जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है. आपसे कोई अली गंडापुर जैसे विंडो खोलने की कोशिश कोई हुई है या नहीं हुई है? नहीं कर रहे ना, वो तो मुझे दहशतगर्द बनाने में या साबित करने में लगे हुए हैं. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कोई कहीं ना कहीं आप जाएंगे खान साहब से मिलने, कहीं ना कहीं से को रास्ता खुले. कहीं ना कहीं से जितनी भी रास्ते ये ढूंढ रहे हैं मुझे दहशतगर्द और स्मगलर बनाने में लगे हुए हैं. बाकी खुद कोशिश की, आपने मुझे मैंडेट अभी इमरान खान की तरफ से नहीं मिली. जो असल ताकत जिनके पास है वही स्मगलर बनाते हैं, वही सियासतदान बनाते हैं, वही सियासी पार्टियां बनाते हैं. इसलिए इसमें तो कोई दो राय देखिए सबसे बड़ी ताकत जो है वो मेरा अल्लाह की है. उससे ज्यादा मैं अभी उस पर भी आ रहा हूँ. जो नुमाइंदे जिनके पास असल ताकत है, मेरे अल्लाह ने जो है मेरे अल्लाह के पास ताकत है. मेरे अल्लाह से ताकतवर कोई भी नहीं है. फिर जमहूरियत में दूसरी ताकत जो है वो अवाम की है, जो इमरान खान साहब के साथ है, जो डंडे की जोर पर और बंदूक की नोक पर अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो फिरौन भी करता था, वो यजीद भी करता था, लेकिन उनका नाम निशान भी नहीं है. जिनके खिलाफ करता था अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दी है वो अभी जो है पूरी मुसलमान दुनिया को पता है. बहरहाल इनके पास जो दुनियावी ताकत है वो है, लेकिन अवामी ताकत इससे कई ज्यादा है. लेकिन आप इजलासों में भी नहीं जाते, अगर कहीं तो कोई स्पेस तो निकलेगी ना. नहीं, इजलास में मुझे नहीं बुलाया. का मिलने के लिए आए थे. जी आए थे. तो कोई वो तो इस तरह के यहाँ सिंध में रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी कोई ऐसी बातचीत का आगाज नहीं हुआ या कोई मैसेज नहीं आया आपके पास? नहीं आया. कोई स्पेस निकालते हैं? नहीं, वो जो है बहुत नरम बातें हुई, बहुत क्या कहते हैं अच्छे माहौल में बातें हुई. लेकिन उसमें जो है ये बातें शामिल नहीं थी. वो भी जरूर पूछ कर बताएगा, वो तो कुछ नहीं कह सकता. एक सवाल अब तक एक बात तय हो रहा है कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा हम इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन पूरी तहरीक इंसाफ जो है पंजाब को मोबिलाइज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेगी. अच्छा, को किस तरह मोबिलाइज करेंगे? बाहर का कारकुन बाहर आने को तैयार है, नवाब लीडर तो नजर नहीं आता है भी नहीं. पीटीआई की ग्रुपिंग ग्रुपिंग तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. देखिए यार, ये अल्लाह करे कि ये काम करे. नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज मजीद बैठ रही. और करीब नहीं ठीक है. गर्म पानी पी लें, गर्म पानी के लिए मंगवा दें, गला साफ हो जाएगा. थोड़ा सा गर्म पानी अच्छा, आपने क्या सवाल किया? अच्छा नहीं, ये नहीं बस छोड़ा है बात कर. ये बिल्कुल गलत बात है. आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा निकलते हैं. जब 13, 14 और 15 मार्च को जमान पार्क पर हमला हुआ, हम वहीं पर रहे.
पंजाब जिस अंदाज में निकला और जिस दलेरी के साथ उस फस्तैयत और जबर का मुकाबला किया, ऊपरी नहीं पंजाब वाले थे। मैं खुद KPK से हूँ, मैं वहाँ पर था, मैंने देखा। अच्छा, हमें फिर भी जो है वो आंसू गैस से आंसू आ रहे थे, वो इतने दलेर थे कि वो आंसू गैस से भी पीछे नहीं हट रहे थे। तो पंजाब निकलता है, पंजाब 8 फरवरी को भी निकला था, इसलिए 17 सीटों वाले जो है आज हुकूमत में बैठे हैं और 180 सीटें जो है हमें पंजाब के लोगों ने ही दी हैं। पंजाब निकलता है और इंशाल्लाह इस दफ़ा जिस तरह निकलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ और लोगों का जो जोश जज्बा और जुनून, फस्तैयत, जबर, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कबाइलों पर भी FCR के वक्त भी इस तरह नहीं होता था जिस तरह जो है ये जाली हुकूमत अभी कर रही है पंजाब की आवाम के साथ। लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी पंजाब ने मुझे वेलकम किया, तो इस दफ़ा निकलेगा इंशाल्लाह ताला इस तरह निकलेगा कि लोगों की नींद हराम करेगा इंशाल्लाह। PTI की ग्रुपिंग का बताइए, जो PTI की अपनी ग्रुपिंग है वो खुद कितना नुकसान पहुंचा रही है और उसको कंट्रोल क्यों कर पा रही है? देखें, जिनकी तो पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें हों उनमें ग्रुपिंग होगी। ये जमहूरी पार्टी है, 180 सीटें जीती है, 80-85% पाकिस्तान के अवाम में जो है मकबूल तरीन जुमात है, तो उसमें थोड़े बहुत जिनिस चलता रहता है। प्राइवेट प्लेन पर अपना पब्लिक फ्लाइट आपने ली, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके पास हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह CM KP के पास नहीं है वहाँ पर? क्या आप हैं इसी तरह की तबीयत की? क्या आपने इसको मुनासिब समझा कि जस्टिस देना चाहिए? नहीं जी, ये आप गाड़ी के छत पे बैठे हुए क्या बात, क्या करें? अच्छा, मैं सच्ची बात ये बताऊं कि इन प्रोटोकॉल्स में मेरी रूह तंग होती है। ये ज़्यादा जो ये चमकी मुमकी मुझे नहीं पसंद। कट जाते हैं। हाँ, मैं आवाम से कटना नहीं चाहता और मेरे ख्याल में सियासी बंदे की यही ताकत होती है कि वो आवाम के साथ इंटैक्ट रहें। बाकी जो मैं आपके पास क्या जहाज अपना KP का या चार्टर्ड प्लेन या हेलीकॉप्टर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, मेरे साथ खुद की गाड़ी भी नहीं है, चार्टर्ड प्लेन कहाँ से होगा? मेरे साथ खुद की गाड़ी भी नहीं है, सरकारी गाड़ी। अच्छा, बाकी खैर जब तक ये ना कहे तब तक हम बैठे। अच्छा, ये जो मेरे लीडर ने ऑस्टेरिटी हमें सिखाई है और पाकिस्तान की आवाम का पैसा जो है ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो वही मैं जो हमारी लीडर की सिखाई हुई तरबियत है। हाँ, नेचुरली। अच्छा, एक सवाल ये था कि बैरिस्टर साहब सब कुछ बता रही थी यही मुज़ाकरात के लिए खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उसमें क्या आपका लगे? खान साहब ने किस कब ये तो खबर तो चली ना कि खान साहब ने मेरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक और बात अभी तो पहले बात हुई थी जिसके ऊपर आपको खान साहब खातिर करते कह रहे हैं, आप बापू आपसे प्यार होता है। अच्छा, उसमें सवाल ये इस तरह से सवाल ये कि जो मुख्तलिफ फिल्मों की जानिब से आपसे या PTI पे क्रिटिसाइज किया है कि खुलकर दहशतगर्दों के खिलाफ, बिलखुसूस तहरीक तालिबान के खिलाफ अभी भी आप जब बात कर रहे हैं तो खुल के बात नहीं कर रहे हैं, नाम लेके नहीं बोल रहे। यार, हम तो बंदूक नहीं उठा सकते ना, बंदूक उठाना तो किसी और का काम है। नहीं, तो आप हम एक ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के बात करें। ये डर PTI के अंदर आपके मौजूद है, इसमें कोई मुजाफी की बात नहीं है कि अगर आप PTI को क्रिटिसाइज TTP को क्रिटिसाइज करेंगे, हो सकता है कि वो आपको अटैक करना शुरू करें, दीगर जमातों को, इवन JUI को वो अटैक कर रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं। क्या ये कहीं आप बैक ऑफ द माइंड आप लोगों के जहन में है बात कि आप क्रिटिसाइज करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन? 1947 से लेकर 2025 तक जब किसी सरकारी इदारे के बंदे ने सबसे बड़ा झूठ बोला होगा वो ये झूठ है। हमारे वज़रा पर खुदकश हुए, हमारे वज़रा शहीद हुए, हमारे लोगों को गोलियां लगी हैं। इधर हमारा जो है अभी पुख्तनियार आया है, उस पर खुदकश हुआ है, उसका टांग अभी भी वो जो है वो स्टिक लेकर घूम रहा है। हमारा लियाकत इधर आया हुआ है, MPA हमारा पॉपुलेशन का मिनिस्टर था, उस पर धमाका हुआ है, वो जेल में था। खान साहब खुद उसके पास गए थे पूछने के लिए। हमने शहादतें दी हैं, चाहे एज ए पार्टी हो चाहे एज ए कौम हो। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो हम पर अटैक नहीं करते, और ये इंतहाई नीच सोच की अक्कासी करती है कि आप किसी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी के मुंह में दे रहे हैं कि आप इन पर खुदकश करें, इनको निशाना बनाएं, इन पर अटैक करें। ये क्या पैगाम दे रहे हैं? इसको खुद पता नहीं है कि वो जो है इनको किस चीज़ की दावत दे रहे हैं। मतलब ये खुश होगा कि अगर वो हम पर मजीद अटैक करें, मजीद हमें शोधा दें। यार, हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। हम सोच रहे थे कि ये जो है दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, तो दहशतगर्दों को दावत दे रहे हैं कि PTI पर हमला करो। अफगान महाजरीन को जो वापस भेजा जा रहा है, इसका मैंने इसकी भी सपोर्ट करते हैं ना, अफगान महाजरीन को जो वापस भेजा जा रहा है। देखिए, जो भी नेशनल पॉलिसी होगी उसको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मजबूरन भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारा प्ली ये है उसमें कि एक माजर को, अफगानी को, जो पेशावर मुजरिम अफगानी है, उसको आप लोगों ने जो है वो शिनाख्ती कार्ड दे दिया। उसको फिर जो है इलेक्शन में उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए, उसको आप लोगों ने जो है फॉर्म 47 के जरिए MPA बना दिया। जो पेशावर मुजरिम अफगानी था उसको आप जो है सर पर बिठा रहे हैं।
جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو لیگل طریقے سے یہاں آئے ہیں, جو یہاں پر لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں, ان کو آپ دھکے مار کر باہر نکال رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ گڈ افغان اور بیڈ افغان یہ چیز بھی چل رہی ہے. تو پالیسی ایک ہونی چاہیے, چاہے وہ آپ کا جو غلط تاثر بنا ہوا تھا وہ درست ہوا, اور دوسری بات ہے کہ ہم آپ کو بھی سمجھتے ہیں کہ غصے والے مراد سعید کی طرح آپ ہیں, لیکن شاید اس سے بڑے مختلف ہیں. وہ ہمارا سیاسی